Okay, Namaskar to you all. So today we will revise the chapter Bharat Desh. Okay, so all of you, I hope you all are safe and healthy. So we will start. So let's start the chapter. So I'm sharing the screen. Okay, so here it is. Okay, Bharat Desh. Bharat Desh, written by Subramanyam Bharati. Okay, so first of all, you have to name 5 national heroes. Okay, so anyone, can you name any 5 national heroes that you know? You can write in the chat box. Okay, so I'm going to unmute you all so that you can. Yes, you can write. APJ Abdul Kalam, written by Abhinav Kumar 6A. Okay, Aditya Jha, written Tiger Shroff. He's a national hero. Okay, for you, Tiger Shroff is a national hero. For Abhinav Kumar, national hero is APJ Abdul Kalam. Anyone else who want to write? Anyone who can share their views? Okay. Smriti Komal, Mahatma Gandhi. Adarsh Sharma, APJ Abdul Kalam, and Piyush Kumar, Bhagat Singh. Very good. Anyone else? Very good. Shyamali Veer Bhagat Singh, Rani Lakshmi Bai. Very good. Very nice. Anyone else who can share? Okay, Priyanshu Kumar, Subhash Chandra Bose. Wow, that's great. You are absolutely true. Any other else? Dr. B.R. Ambedkar, yes. Ayush Kumar, Mangal Pandey. Okay. Ritika Mahatma Gandhi, Prachi. Okay, that's all. Raja Ram Mohan Roy. Very good. But anyone can tell why they all are national heroes? Okay. I wanna ask Piyush Kumar. Okay. Piyush Kumar. Okay, Aman Raj want to answer. Okay. You can unmute yourself and tell. Sir, Raja Ram Mohan called a modern India father. Okay, that's why he is a national hero. Okay. Anyone else who can answer? Who want to answer? Okay, Smriti Komal. Smriti Komal. Smriti Komal, you can unmute yourself. Okay. Yes, Neha, sir. Neha, you want to ask anything? Sir, Mahatma Gandhi is our Okay. Sir, Mahatma Gandhi is our hero because he believed in his own principles for many years, died, and he fought for India. Very good. Very nice. Well done. Please, a big applaud for him, for her. Okay. For her. Next, anyone else who want to answer? Who want to share their views? Anyone? Anyone else? If anyone want to share, Smriti Komal. Okay. Smriti Komal, you can unmute yourself. Aditya Jha. Okay. Yes, sir. Wanna say anything else? No, sir. Okay. Then Aditya Jha want to answer. Aditya, you may. Yes. Aditya, unmute yourself and answer. Sir,
सर क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर सर इसलिए मतलब वो हीरो है सर, क्योंकि सर वो कास्ट पे बिलीव नहीं करते थे सर। वो जब बचपन में पढ़ने जाते थे तो सर सब बोलते थे कि ये छोटी कास्ट के हैं तो ये नहीं पढ़ सकते, ऐसा वैसा सर। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं सर, सारे कास्ट सेम होते हैं और सारे इंसान एक होते हैं। Very nice, well done. Please give him a big applause for him. Very nice answer. Actually, B.R. Ambedkar is such a national hero who done a lot for our country. Okay. So anyone else who want to share? Anyone else? Otherwise, okay. Aditya Jha, Piyush Kumar. Okay, Piyush Kumar. Yes, you may answer. You may share your view. Okay, Piyush. Yes, sir. Okay, answer. Sir, Bhagat Singh was national hero because was an Indian revolutionary fighter, freedom Exactly. fighter, Very nice. was hanged to death by British colonizer at age of 23. Wow, that's Known great. as Shahid Bhagat Singh Yes, was known as national hero. very nice. Well answer. Well answer. Please give him a big round of applause for Piyush Kumar. Okay. So if anyone else want to answer or want to share their views, all are welcome. Otherwise, we proceed to the poem. You all have answered very well. Very well. Okay. So let's proceed to the poem. So we know who are national heroes. They all are very patriotic. They done a lot for our country. Okay. So let's see what else they done for us. Okay. Now the poem. With the name of Bharat Desh, you know, our country name is Bharat. Actually, our country is also known as Hindustan or India. You all obviously know that our country is also known as Aryavarta. Okay, but here with the name of Bharat Desh on our lips, with the name of Bharat Desh on our lips, माने जैसे ही हमारे होठों पर भारत का नाम आता है, as the Bharat comes on our lips, the name of our country, तो ये भारत देश क्या है? भारत नाम आने से ही जाति मिट जाती है, धर्म मिट जाता है और हमें क्या दिखता है? सिर्फ हमें हमारा देश दिखता है। न कोई भाषा, न कोई जाति, न कोई धर्म, सीधे सीधे हमें सिर्फ भाषा नहीं दिखता, बल्कि केवल और केवल भारत देश के बारे में हम सोचते हैं। उस समय हम क्या कहते हैं? You all know our school pledge, okay, national pledge. What are our pledge? India is our country. All Indians are brothers and sisters. What it means? कि भारत हमारा देश है। अगर आप हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं? भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। इसका मतलब क्या है? हम सब एक हैं। We all are one. Okay, let us check our fears and poverty. अब कह रहे हैं कि चलिए, हमारा देश तो आज स्वतंत्रता के लगभग 75 साल पूरे करने को है। ठीक है, 75 साल पूरे करने को है और आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर है, गरीबी है, तो हमें उससे छुटकारा पाना ही होगा। तो चलिए, क्यों ना हम लोग इससे छुटकारा पाएं। And everyone and overcome our sorrows and enemies. और यही नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे उबरना होगा। Overcome means you can write the word meanings. I will share. You can write the word meanings also. Okay. Here it is. Okay. You can take screenshot also. Here the particular words which are
difficult, somehow difficult, or you may don't know the meaning. That is shake off. Shake off means get rid of. It means छुटकारा पाना. Okay. Overcome. Overcome means defeat. हराना है हमें. किसको? गरीबी को, अपने दुश्मनों को. अब यहाँ दुश्मन मतलब हम जो सोचते हैं वैसा नहीं है. You can take screenshot or I will share later on. Okay. So let's proceed to the poem. Okay, here it is. So with the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. Fears means dar. Okay, and it means fear. And poverty. Poverty means क्या होता है? गरीबी. आप सब जानते हैं. And overcome our sorrows and enemies. और हमें क्या करना है? उबरना है. यानी उससे दूर जाना, उससे छुटकारा पाना है. क्या किससे पाना है? Our sorrows. Sorrows, you know, हमारी जो जितने भी दुख हैं, जितने भी तरह के. एंड एनिमीज. अब एनिमीज का मतलब हम लोग सीधे सीधे ये सोचते हैं कि हमारे दुश्मन. बट क्या हमारे दुश्मन केवल ये पाकिस्तान को हम समझते हैं, या कोई और देश को हम समझते हैं, चाइना को समझते हैं? ऐसा नहीं है. दुश्मन का मतलब होता है जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उससे भी छुटकारा पाना है हमें, हमारे देश को. ओके, somebody has messaged me. Okay, no. You all are given time to ask the questions. Okay, so don't be panic. So we shall and overcome our sorrows and enemies. यानी हमें क्या करना होगा? हमें अपनी दुखों से, हमें अपने दुखों से उबरना होगा. और क्या करना होगा? दुश्मनों को भी हराना होगा. अब ये दुश्मन है कौन? दुश्मन केवल कोई पड़ोसी देश नहीं होता. दुश्मन हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या क्या है? भ्रष्टाचार है, ठीक है, कुरीतियां हैं. ओके, ये सारे भी हमारे एनिमीज हैं जो हमें हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकती. ठीक है ना? तो ऐसी चीजों से भी हमें क्या करना है? एक सद्भावना लोगों में लानी है. ओके, वी शैल स्ट्रोल ऑन द स्नो क्लैड silvery heights of the Himalayas. We shall stroll on. इसका मतलब क्या होता है? हम हिमाच्छादित. हिमाच्छादित मतलब होता है पूरी तरह से हिमालय में जो बर्फ बिछे हुए होते हैं, पूरी बर्फ की एक चादर बिछी हुई होती है. तो हमें क्या करना है? वहां उस पहुंचना है. अब यहाँ पर हिमालय की चोटियों पर पहुंचना है, कहने का तात्पर्य है. देखिए, यू कैन सी द मीनिंग. सो ये देखिए, यहां अगर आप मीनिंग देखें तो स्नो क्लैड का मतलब होता है स्नो कवर्ड. ओके, स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढका हुआ. ओके, यू ऑल कैन सी. तो ओके, आगे बढ़ते हैं. तो वी शैल स्ट्रोल ऑन द स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स ऑफ द हिमालय. स्नो क्लैड का मतलब आप समझ. वी शैल स्ट्रोल ऑन. स्ट्रोल ऑन मीन्स हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, चढ़ना है, वहां तक पहुंचना है. ओके, हमें क्या करना है? वहां तक पहुंचना है. ओके, और कहां पहुंचना है? ऊंचाइयों तक पहुंचना है और अपने देश को भी वहां पहुंचाना है. हिमालय, देखिए हिमालय जो है आप सब लोग जानते हैं, सिल्वरी का मतलब होता है चांदी के समान चमकने वाला. जब आप हिमालय पर्वत पे जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो वहां पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, वो ऐसा प्रतीत होगा, मानिए कि वो चमक रहा हो, चांदी के जैसा हो. इसीलिए कहा गया है सिल्वरी. वी शैल स्ट्रोल ऑन द स्नो क्लैड. हम वहां पर पहुंचेंगे, वहां तक. स्नो क्लैड यानी बर्फ से ढकी हुई उस हिमालय पर्वत पर, हाइट ऑफ द हिमालय, हम वहां पहुंचेंगे. अब यहाँ कहने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हमें हिमालय तक पहुंचना है. कहने का तात्पर्य यह है, इट मीन्स हमें हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है. ओके, हमें हमारे देश को भी सबसे आगे ले जाना है, दुनिया में नंबर 1 अपने देश बनाना है. और यही नहीं, तो हमें दुनिया में अपने देश को विश्व गुरु बनाना है. ओके, प्रियांशु वांट टू आस्क समथिंग. ओके, प्रियांशु, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Priyanshu, you can unmute yourself.
Okay. Yes, sir. Okay. Ask the question. Do you have any question or query? No, sir. No, sir. Okay. Aditya Jha, unmute yourself. Aditya Jha, unmute yourself. सर Yes. सर वर्ल्ड में सर सबसे पहले हिमालय पर कौन पहुंचा है? वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कहाँ पे? यस सर। कहाँ? सर हिमालय। इंडिया में या वर्ल्ड में? सर इंडिया। इंडिया में। आप बताइए सबसे पहले कौन पहुंचा था? डोंट यू नो? सर वही। नो सर। Okay. So here, not the question is who who strolled on the snow-clad silvery heights of the Himalayas first. यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हमारे देश को क्या करना है। मैं उसका क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, पहले पोएम को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम आदित्य? नो सर। ओके, सबसे पहले हम इस जहां पर मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसके बाद रुक जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। ओके, सो ऑल आर रेडी। वी शैल स्ट्रोल ऑन स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स ऑफ द हिमालयाज। आप लोग चाहे तो अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, वी शैल सेट अप स्कूल्स। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है। ओके, somebody has messaged me. ओ, शफा खान ने कहा है मलावत पूमा। अच्छा, सफा खान, वेयर इज सफा खान? सफा खान, सफा, सफा कहाँ है? मैं सफा से बात करना चाहता हूं। आप लोग अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शफा तो मुझे दिख नहीं रही है, कहाँ है भाई शफा खान? शफा ने मैसेज किया है कि कोई नाम लिखा है उन्होंने। ओके, चलिए हम उनसे बात करते हैं फिर दोबारा। ओके, सो लेट्स सी द पोएम अगेन। सो वी हैव सीन दिस मच। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है विद द नेम ऑफ भारत देश। भारत देश के नाम पर ऑन आवर लिप्स, जैसे ही हमारे होठों पर भारत देश का नाम आता है, लेट अस शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी। हमें क्या करना है? उससे छुटकारा पाना है। किससे दूर? यानी उससे छुटकारा पाना है अपने डर से और गरीबी से। अब डर बहुत तरह का डर होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? एंड ओवरकम आवर सॉरोज एंड एनिमीज। हमें अपने दुखों से भी उबरना है और अपने दुश्मनों से भी उबरना है, यानी उसे हराना है। यहाँ दुश्मन का मतलब केवल दुश्मन देश नहीं होते या हमारे कोई दुश्मन नहीं होते। यहाँ दुश्मन का मतलब होता है चाहे वो हमारे देश के विकास में कोई दुश्मन बन रहा हो या अड़चन बन रहा हो, उसे भी हम कह सकते हैं। जैसे कि वो भ्रष्टाचार हो सकता है, या फिर गरीबी हो सकती है, या जो भी हमारे देश को उन्नति बनाने में अगर वो अड़चन बन रहा है, रुकावट बन रही है, तो ऐसे चीजों से हमें क्या करना है? उबरना है। एंड वी शैल स्ट्रोल ऑन द स्नो क्लैड। और हमें क्या करना है? हमें करना है क्या? हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों तक पहुंचना है। अब यहाँ पर हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर जहां पर बर्फ छाए हुए रहते हैं, जो कि चांदी के समान दिखता है, यहाँ केवल इतना अर्थ नहीं है कि हमें कहाँ पहुंचना है? हिमालय पर्वत पर। कहने का तात्पर्य यह है, इट मीन्स कि हमें अपने देश को सबसे आगे ले जाना है, नंबर 1 देश बनाना है, यानी सबसे आगे, ठीक है। वी शैल स्ट्रोल, ओके, आवर शिप्स शैल sail across the high seas। और हमारा जो शिप है, शिप मतलब जहाज होता है, पानी का जहाज। हमारा जो शिप है, हमारा जहाज है, shall sail, जरूर आगे बढ़े, across the high seas, यानी जितनी भी समुद्र हैं, जितने भी 7 समुद्र हैं, 7 समुद्र पार करें, उसके ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब यहाँ पर शिप सेल करने का मतलब है हमारा जहाज नहीं होता। यहाँ शिप सेल करने का मतलब होता है हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हमारे देश को समुद्र में, 7 समुद्र यानी जितने भी द्वीप हैं, उन सभी द्वीपों में
एक नंबर में भारत देश का नाम आना चाहिए, ऐसा करना है। We shall set up schools, all sacred temples for us. और हमें क्या करना होगा? सेटअप करना होगा, यानी स्कूल को क्या करना पड़ेगा? स्कूल ओपन करने होंगे, स्कूल हमें क्या करना होगा? ओपन करना पड़ेगा। ऑल सैक्रेड टेम्पल्स फॉर अस, और स्कूल ऑल सैक्रेड, देखिए यहाँ पर आपने ध्यान दिया है, स्कूल के बाद एक हाइफन है और उसके बाद है ऑल सैक्रेड टेम्पल्स फॉर अस। आप सैक्रेड टेम्पल्स मतलब समझ रहे होंगे कि पवित्र स्थल, यानी टेम्पल्स का मतलब मंदिर होता है, जहां जहां हम जाकर प्रे करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या आपको मंदिर बनाने के लिए कह रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आदित्य कुछ पूछना चाहते हैं। आदित्य, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नो सर, कुछ नहीं पूछना है। ओके, यू हैव रेज्ड हैंड, दैट्स व्हाई। ओके सर मेरा लो हैंड नहीं ना हो रहा था सर, इसलिए। ओके, कोई नहीं। चलिए, भारती कुमारी जो है, अच्छा, नोरगे शेरपा, तेनसिंग नोरगे शेरपा जो हैं, ये भारती कुमारी का कहना है कि यही सबसे पहले, लगता है मुझे। चलिए, आप लोग आंसर, आप अनम्यूट, हम बोलिए भारती। भारती, भारती, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? स्वाति कुमारी कह रही है सेकंड लाइन का मतलब। ओके, सेकंड लाइन का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। ओके, तो देखिए, सेकंड लाइन है लेट अस शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है हमें छुटकारा पाना। किससे? आर फियर्स, हमारे डर से, और एंड पॉवर्टी, और हमारी गरीबी से। ठीक है, इसका मतलब ये है। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिए। We shall set up schools, all sacred temples for us. यहां पर केवल ये मतलब नहीं है कि हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सब बना देने, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है स्कूल ही है जिसको मंदिर कह रहे हैं कवि। पोएट wanna say temple to the schools only, यानी हम जितने स्कूल खोलेंगे लोगों को उतना ज्ञान होगा, लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और कहते हैं ना, यू नो, एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ एनी कंट्री। आपको पता होगा, अगर हम जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो दुनिया में नंबर 1 होंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलने होंगे, जो कि हमारे लिए मंदिर के समान है। ओके, तो our ships shall sail across the high seas, यानी हमारा भारत देश, यहाँ शिप का मतलब यहाँ पे शिप नहीं है, शिप का मतलब है भारत देश को कहा गया, जो कि across the sea, हमें सातों समुद्र, जितने भी कंट्रीज हैं, 194 कंट्रीज हैं, अभी तो 204 भी हो गए हैं, तो 204, 205 कंट्रीज में हमें नंबर 1 कंट्री बनना है। ठीक है ना? आपको मालूम है, ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गरीबी में हमारा देश नंबर 1 पे आता है। ऐसा क्यों है? और ये एकदम लेटेस्ट जो आंकड़े कहते हैं, तो ये तो गलत है। तो इस बात से बहुत दुख होता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना है, अपने देश को आगे ले जाना है। वी शैल सेट अप स्कूल्स, हमें स्कूल को सेटअप करने होंगे, यानी स्कूल खोलने होंगे। ऑल सेक्रेड टेम्पल्स फॉर अस, और स्कूल रूपी और जितने भी पवित्र स्थल हैं उसको खोल देने होंगे, हर एक धर्म के लिए, जहां पर कोई भी धर्म का कोई रुकावट नहीं होगा, हर कोई जा सकता होगा। एंड प्राउडली थंब आवर शोल्डर्स एंड अटर, और प्राउडली यानी बहुत ही ज्यादा गर्व से हम एक दूसरे के कंधे को थपथपाएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स, भारत, कि ये है हमारा देश भारत। हम ऐसे कंधा थपथपाएंगे और कहेंगे, देखो ये है हमारा देश भारत। यहां तक समझ में आया सबको? देखिए, मैं यहां तक पढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 lines I have already taught. So anyone having question, they may raise the hand. Okay, अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन में अगर कोई परेशानी है तो आप जरूर हाथ उठाएं। और हाँ, ये रहा आपका, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको वर्ड मीनिंग जो है वो लिखने में, जैसे देखिए, अटर का मतलब होता है टू से समथिंग, थंब मतलब हिट हार्ड,
यहाँ पे हिट हार्ड का मतलब मारना नहीं है, यहाँ जो हम जोर से पीठ थपथपाते हैं ना उसको कहा गया है। क्लियर? हम देखिएगा एक दूसरे का क्या करते हैं, जोर से पीठ थपथपाते हैं। ओके, आदित्य वांट टू आस्क समथिंग। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। सर लाइन नंबर सर 4। लाइन नंबर 4। ओके ओके, अभी मैं बता देता हूँ। सर आपने स्क्रीन शेयर सर वो पोयम का ही किया है ना सिर्फ? अभी तो मैं वर्ड मीनिंग का किया हूँ। देखिए आपको वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा। नो सर नहीं दिख रहा है। अच्छा, वर्ड मीनिंग आपको नहीं दिख रहा है? नो सर। अच्छा, वर्ड मीनिंग नहीं दिख रहा है। और अच्छा, वर्ड मीनिंग आप लोग को, अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसको क्लोज करूंगा तब लगता है दिखेगा। तो आपको ये नहीं, ओके कोई नहीं। अच्छा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग। आप अच्छा, आपको ओके सबको पोयम सबको दिख रहा है? पोयम सबको दिख रहा यस है ना? सर। ओके यस सर। चलिए, तो चलिए अच्छी बात है। तो पोयम तो दिख रहा है आपको, फोर्थ लाइन समझ में नहीं आया। तो फोर्थ लाइन है वी शैल स्ट्रोल ऑन। स्ट्रोल ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, चढ़ना। कहां पर? ऑन द स्नो क्लैड, यानी हिमाच्छादित, जहां पर बर्फ ही बर्फ हो, सिल्वरी, चांदी जैसा बर्फ पूरा एकदम आच्छादित हो यानी ढका हो, हाइट्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के चोटी पर पहुंचना है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है और हिमालय पर्वत तक पहुंच जाना है, उसकी ऊंचाइयों तक पहुंच जाना है। इसका मतलब ये है हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। आई बात समझ में? ओके आदित्य, अच्छा रुकिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आदित्य आप समझे? यस सर। ओके चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबको अलाउ कर देता हूं, बट अनम्यूट तभी होइएगा जब मैं कहूंगा। ओके चलिए, मैंने अलाउ कर दिया है। ओके तो चलिए, अब किसी को क्वेश्चन करना हो, फर्स्ट रेज हैंड एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, वन मैसेज इज देयर। सर सेकंड लाइन का मतलब अटर, अटर का मतलब होता है टू से समथिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो कह रहे हैं कि जब हमारा देश आगे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने ही देश के लोगों को कंधे पे थपथपाएंगे, जोर से बोलेंगे वाह देखो ये है हमारा देश भारत। कब? जब हमारा देश सबसे आगे होगा, गर्व होगा हमें। ठीक है ना? वन मोर मैसेज इज हियर। सर थर्ड फिर से समझा दीजिए। ओके व्हाई नॉट, जरूर समझा दूंगा मैं। पीयूष कुमार का कहना है थर्ड लाइन, एंड ओवरकम आर सॉरोज एंड एनिमीज। ओवरकम का मतलब होता है छुटकारा पाना, उससे उबरना। उबरना का मतलब होता है उससे छुटकारा पा जाना। ठीक है ना? मतलब उससे निकल आना। किससे निकल आना? सॉरोज, अपने दुखों से। हमें बहुत दुख मिले हैं हमारे देश को, और किस तरह से मिले हैं? अगर मैं एग्जांपल लूं तो यवन से ही, यवन और हुणों ने हम पर हमला किया, वहां से लेकर अंग्रेज तक, और आज हमारे देश के नेता हमारे दुख का कारण बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? तो हमारे सॉरोज यानी हमारे जो है दुख, और एनिमीज हमारे दुश्मनों से हमें छुटकारा पाना है। तो हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन भ्रष्ट लोग हैं। हमारे दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन गरीबी है। हमारा दुश्मन कौन है? भ्रष्टाचार है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन वो है जो हमें हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है। वन मोर मैसेजेस है। सर फिफ्थ लाइन समझा दीजिए। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मैं इसीलिए तो सेवंथ लाइन पे रुक गया ताकि आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5th, our ships shall sail across the high seas। यानी हमारा जो जहाज है वो सातों समुद्र आगे और बहुत आगे जाएगा। तो यहाँ हमारा जहाज का मतलब शिप नहीं है, हमारा जहाज का मतलब क्या है? आर कंट्री। ठीक है, आर कंट्री। ओके, हमारा जो कंट्री है वो बहुत आगे जाएगा। और कब जाएगा? कब जाएगा? जब हम वी शैल सेट अप स्कूल्स, जब हम लोग स्कूल खोलेंगे। स्कूल को क्या बोला गया है? ऑल सैक्रेड टेम्पल्स फॉर अस। स्कूल के रूप में जितने भी पवित्र स्थल हैं, यानी सबसे ज्यादा पवित्र स्थल किसको कहा गया है? जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल को सैक्रेड टेम्पल्स कहा गया है। सैक्रेड टेम्पल्स वैसे होते हैं पवित्र स्थान जहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओके, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, उसको कहा जाता है। यहाँ पर कहा है सर सेवेंथ लाइन समझा दीजिए। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, रुक जाइए, फिफ्थ के बाद हम लोग सेवेंथ में चलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कह रहे हैं वी शैल सेट अप स्कूल्स। तो हमें क्या करना होगा? अगर देश को सबसे आगे ले जाना है, नंबर 1 बनाना है, तो सबसे पहले स्कूल रूपी धार्मिक स्थल खोलने होंगे। अब स्कूल के रूप में
यानी विद्यालय के रूप में धार्मिक स्थल, यानी ओके म्यूट योरसेल्फ अदरवाइज इको होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वन मोर मैसेजेस है, 6th लाइन, अच्छा ठीक है, मैं तो 5th 6th 7th तीनों फिर से समझा देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो आवर शिप सेल, यानी हमारा जो देश रूपी जहाज है वो सातों समुद्र कब पार करेगा, जब हम लोग सबसे उबर जाएंगे, ठीक है ना, तब जाकर क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके, अब आगे देखिए, तो 5th लाइन आप लोग को समझ में आ गया। ओके, how many of you understood the 5th line up to 5th line? How many of you understood up to 5th line? Okay, how many of you? Very good, very good. All of you just raise your hand if you understood. Very good. और कौन कौन समझ गया है भाई, मैं सबका देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग समझ गए हैं, सब लोग मुझे बताइए एक बार, मैं सबका देखना चाहता हूं कि कितने लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ओके 23 पार्टिसिपेंट्स, और बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या, बाकी लोग भी बोलिए। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 5th लाइन तक सब लोग समझ गए हैं, 6th लाइन भी एक बार फिर से समझ लेते हैं, और 7th भी लाइन हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट पुट योर हैंड्स डाउन, ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड। सो अब 5th लाइन क्या है, 1 2 3 4 5th एंड 6th लाइन, वी शैल सेट अप, यानी हमें हमारे देश रूपी जहाज को आगे कब ले जा पाएंगे, जब हम लोग स्कूल रूपी धार्मिक स्थल, यानी देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि मंदिर मस्जिद ये सब खोल दीजिए, इसका स्थापना कीजिए, नहीं, नो नो नो, हमें कह रहा है विद्यालय रूपी मंदिर का स्थापना कीजिए, जहां सब लोगों को पढ़ने का मौका मिले और जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि मैंने अभी कहा ना, एक लाइन कहा है, ये शायद किसने कहा है, आइंस्टाइन ने शायद कहा था कि एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन जो होता है वो चीफ डिफेंस होता है, यानी अपने आप बचाव करना है और जीवन में यानी देश को सबसे आगे ले जाना, तो सबसे पहले हमें पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा, अपने देश को पढ़ा लिखा और लिटरेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो एंड प्राउडली थम, और देखिए जब हम लोग स्कूल की स्थापना कर देंगे, स्कूल रूपी मंदिर की स्थापना कर देंगे, तो क्या होगा, तब हम जाकर एक दूसरे के कंधे को थपथपाएंगे, जोर से मारेंगे, थपथपाना मतलब, और शाबाशी देंगे कि देखो ये है हमारा देश भारत, जब नंबर 1 बन जाएगा उसके बाद। एंड प्राउडली यानी गर्व से, थंब आवर शोल्डर्स, यानी अपने शोल्डर्स मतलब कंधे पर थपथपाएंगे, एंड अटर, और बोलेंगे, द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स, देखो ये है हमारा अपना देश भारत। कौन सा देश है, यही है हमारा अपना देश, यहीं पर हो तो यहीं पे। भारत। ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो बात समझ में आई। अब आगे देखिए, भव्या यू हैव एनी प्रॉब्लम, भव्या? ओके, सो अब 7th लाइन तक तो समझ में आ गया, उसके बाद 8th लाइन क्या है, विथ द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स, लेट्स शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी, यानी फिर से वो पहले की 2 पंक्तियों को दोहराया है कि हमें भारत देश के नाम के साथ जैसे ही हमारे होठों पर इसका नाम आता है, तो चलिए हम क्या करें, अपने डर को और गरीबी को दूर करें, ठीक है। सो अप टू दिस, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so up to 10 lines you all are understood। जितने लोग समझ गए हैं ये 8 लाइन तक, वो हाथ उठा दीजिए। ओके, और अब आप लोग चाहे तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने लोग समझ गए। 7th लाइन फिर से समझाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड प्राउडली थम्स अप, जब स्कूल रूपी धार्मिक स्थल की स्थापना हो जाएगी और लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, हमारा देश पढ़ा लिखा हो जाएगा, और तब क्या होगा, तब हम लोग गर्व के साथ एक दूसरे के कंधे पर जोर से हाथ मारेंगे और कहेंगे देखो ये है हमारा देश भारत, ये है हमारा अपना भारत, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।
Okay, anyone want to ask anything regarding this? No, sir. regarding this जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए, Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो मैं अब शेयरिंग स्टॉप करता हूँ. समझ आ गया। ओके, तो शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ. तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब समझ गए हैं. चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई. अच्छा, और किसी को कोई परेशानी है? और किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए. You can नो ask. सर, अब कोई परेशानी नहीं है सर You all can unmute yourself. So we have about 3 minutes left. Okay, we all have. So you can ask any question regarding this poem. सर वर्ड मीनिंग सर आप ग्रुप पे भेज देंगे? मैं स्नैप होमवर्क पे आपको भेज दूंगा वर्ड मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है. ओके, ओके anyone Okay, sir. anything else you want to ask? सर, वर्ड मीनिंग ग्रुप पे भेजिएगा। मैं स्नैप होमवर्क पे सर, भेज वर्ड दूंगा, मीनिंग ग्रुप सबको मिल जाएगा. ओके, स्नैप होमवर्क पे आपको. सर, यस 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 सर स्नैप होमवर्क पे बहुत कुछ देखने नहीं आता है, इसीलिए कह रहे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। No, you should get. You will get. You all will get. Okay. So we can conclude. Should we conclude? यस Should we conclude? yes sir. Okay. सर। Okay. Then thank you all of you. I hope you all have enjoyed a lot. Isn't it? यस सर, यस Okay. सर, Yes, sir. यस सर। Okay. Thanks. Be safe. Always be healthy. Take care of yourself. Okay. Good day.